Hello everyone. So this lecture is about blood glucose as an analyte in clinical biochemistry. In this lecture, we will study maintenance of blood glucose, significance of blood glucose in clinical biochemistry, various kinds of tests performed like HbA1c, glycated plasma proteins, microalbuminuria, oral glucose tolerance test. I will also discuss diabetes mellitus, different kinds of diabetes mellitus, type 1, type 2, and gestational diabetes. I will discuss glycemic index. In this lecture, I will also discuss units of expression of blood glucose and their conversion. Let's proceed. So let's begin with some general facts about glucose. So glucose is the primary source of energy for all of us. Okay, all organisms, almost all organisms use glucose as a primary source of energy. What are the different important roles of glucose in our body? So the first and primary role of glucose is that it is burned for energy. The second one is that it is stored in the form of glycogen to be used as for energy during fasting. Third is that it is stored or it is converted into fatty acids, cholesterol, and other molecules, and they all have different roles in the body. You must be knowing that glucose can be converted into fatty acids, or glucose can be converted into fats, and those fats are then burned for energy during starvation. ठीक है, ग्लूकोज जो है फैट्स में कन्वर्ट होता है हमारी बॉडी में और स्टोर हो जाता है एडिपोज टिश्यू में। और जब भी कभी ज़रूरत होती है, जब भी कभी स्टारवेशन होती है, तब फैट्स का इस्तेमाल होता है फॉर एनर्जी। ठीक है, फैट्स आर बर्न फॉर एनर्जी। कोलेस्ट्रॉल जो है, यू ऑल नो दैट कोलेस्ट्रॉल इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल। और कोलेस्ट्रॉल जो है, it is an important component of cell membrane, as well as it is a precursor of various steroid hormones. ठीक है, various steroid hormones are derived from cholesterol and other molecules like that. Now blood में जो ग्लूकोज के लेवल्स होते हैं ना, they are strictly maintained. अगर लेवल्स कम हो जाए, अगर ब्लड में ग्लूकोज के लेवल्स कम हो जाए, तो दैट कॉज डिलीटेरियस हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया जो है वो बहुत सीरियस कंडीशन होती है। अगर हो जाए तो पेशेंट गोज इनटू कोमा और इसमें डेथ हो सकती है। तो अगर लेवल्स कम होंगे तो हाइपोग्लाइसीमिया होगा, अगर लेवल ज़्यादा हो जाएंगे तो हाइपरग्लाइसीमिया होगा, विच कैन लीड टू डायबिटीज़। ठीक है, तो इसीलिए जो ब्लड ग्लूकोज लेवल्स हैं, दे आर strictly maintained in the blood. Then मटेरियल तो होता नहीं है जिसको कि बॉडी से बाहर एक्सपेल करना हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल होता है, तो इट इज़ नॉट सपोज टू बी फिल्टर्ड आउट थ्रू द किडनीज। लेकिन अगर इसके लेवल्स जो है इसकी थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज़्यादा हो जाएं, और थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या है ग्लूकोज की, दैट इज़ 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। यानी कि अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल्स 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से नीचे हैं, तब तो वो ब्लड में रहेंगे। लेकिन अगर लेवल्स 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो जाते हैं, तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो होता है दैट इज़ फिल्टर्ड थ्रू द किडनी। ठीक है, दैट इज़ एक्सक्रीटेड इन द यूरिन। सो ये है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट ग्लूकोज होम्योस्टेसिस, you know that जो blood glucose levels होते हैं, they are strictly maintained in the they are strictly maintained, and these are maintained within a narrow range. there is a narrow range जिसमें कि blood glucose levels maintain रहते हैं। और इसमें जो लीवर है, it play a key role in maintaining the levels। ठीक है, तो लीवर plays a key role in maintaining blood glucose। now इसमें होता है क्या है कि whenever we have a carbohydrate containing meal, जब भी हम खाना खाते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, खाना खाने के बाद immediately it removes about 70% of the glucose load that is delivered। तो जितना ग्लूकोज हम कंज्यूम करते हैं, ठीक है, जितना हम कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करते हैं, उसका 70% कार्बोहाइड्रेट जो है और ग्लूकोज जो है दैट इज टेकन अप बाय द लिवर। और जो बचा हुआ पार्ट है दैट इज 30%, दैट इज यूज्ड बाय अदर बॉडी अदर सेल्स। ठीक है, लिवर में क्या होता है, सम ऑफ द ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड and converted into some of the glucose is oxidized for energy, some of the glucose is converted into glycogen। ठीक है, to be used under fasting conditions, तो आगे चल के यूज होगा।
और जो एक्सेस में ग्लूकोज होता है दैट इज कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड्स इन द लिवर। ठीक है, तो क्या होता है, जब भी खाना खाते हैं हम कार्बोहाइड्रेट रिच मील खाते हैं तो उसमें से 70% ग्लूकोज जो है दैट इज टेकन अप बाय द लिवर। और लिवर में क्या होता है, सम आउट ऑफ दैट 70% सम ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड फॉर एनर्जी, some glucose is converted into glycogen and some glucose is converted into fatty acids। ठीक है, और जो फैटी एसिड्स जो बनते हैं वहाँ पे, और ट्राइग्लिसराइड्स जो बनते हैं लिवर में, ग्लूकोज से फैटी एसिड्स बनते हैं और ट्राइग्लिसराइड्स बनते हैं। दीज फैटी एसिड्स एंड ट्राइग्लिसराइड्स आर देन पैक्ड इनटू, हाँ कोलेस्ट्रॉल भी बनता है। ठीक है, लिवर में कोलेस्ट्रॉल भी बनता है ग्लूकोज से। So all these things, cholesterol, triglycerides, they are packed into very low density lipoproteins and then transported to the adipose tissue। ठीक है, adipose tissue जो स्टोर्स हैं उनमें ये ट्रांसफर हो जाते हैं। अब क्या होता है, लिवर जो है इट सर्व एज अ बफर फॉर ब्लड ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन। लिवर सर्व एज अ बफर फॉर ब्लड ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन। तो उसमें क्या होता है, there is a rise in blood glucose levels which raises insulin secretion from the pancreas simultaneously। Insulin causes glucose to deposit in the liver as glycogen. Then during next few hours, when blood glucose concentration falls, liver releases glucose back into the blood, decreasing fluctuations। अब इसको क्या है कि जैसे ही आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद ब्लड ग्लूकोज लेवल थोड़े बढ़ जाते हैं। जब वो बढ़ते हैं तो उससे पेनक्रियाज स्टिमुलेट होती हैं फॉर सिक्रीटिंग इंसुलिन। ठीक है, पेनक्रियाज स्टिमुलेट होती है ताकि पेनक्रियाज इंसुलिन सिक्रीट करे। अब जो इंसुलिन सिक्रीट होता है वो क्या करता है, वो जाके एनहांस करता है ग्लाइकोजनेशन को। ठीक है, ग्लाइकोजन सिंथेसिस को एनहांस करता है, प्रमोट ग्लाइकोजन सिंथेसिस विद इन द लिवर। ठीक है, तो इंसुलिन के इफेक्ट से क्या होता है, ग्लाइकोजन का सिंथेसिस होता है लिवर में। तो क्या होता है कि अगले कुछ घंटों में जब ब्लड ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन फॉल हो जाती है, ठीक है, खाना खाने के 2 घंटे के बाद ब्लड ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन गिरने लगती है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, एट दैट टाइम लिवर ग्लूकोज को रिलीज करता है फॉर डिक्रीजिंग द फ्लक्चुएशन। ठीक है, ये मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे लिवर सर्व एज अ बफर फॉर ब्लड ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन, कैसे लिवर जो है बफर करता है ब्लड ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन को। आई होप ये समझ आया होगा आपको। ठीक है, जैसे ही खाना खाते हैं, खाना खाने के तुरंत के बाद ब्लड ग्लूकोज लेवल्स बढ़ते हैं और ब्लड ग्लूकोज लेवल्स बढ़ने से पेनक्रियाज इंसुलिन सिक्रीट करती है। इंसुलिन लिवर में ग्लाइकोजन सिंथेसिस को प्रमोट करता है। ठीक है, इंसुलिन कॉजेज लिवर टू सिंथेसाइज ग्लाइकोजन। अब ये ग्लाइकोजन स्टोर्स जो हैं ये रहते हैं। अब खाना खाने के कुछ टाइम के बाद, यानी कि 2 घंटे के बाद, फिर ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो ड्रॉप होने लगते हैं। उन ड्रॉपिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को मेंटेन करने के लिए, बढ़ाने के लिए, ब्लड में ग्लूकोज लेवल्स को इंक्रीज करने के लिए फिर लिवर जो है वो ग्लूकोज रिलीज करता है। ठीक है, कैसे करता है, बाय ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लाइकोजन स्टोर्स एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, तो लिवर में एक तो ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन होता है जिससे कि ग्लूकोज रिलीज होता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल। दूसरा ग्लूकोनियोजेनेसिस भी होती है। ठीक है, ग्लूकोनियोजेनेसिस में क्या होता है, देयर इज सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम पायरुवेट। ठीक है, लिवर में पायरुवेट से फिर ग्लूकोज सिंथेसाइज होता है। तो ये 2 प्रोसेसेस होती हैं जिससे कि जो लिवर है इट इट मेंटेन्स द होम्योस्टेसिस ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड। So, under fasting conditions, muscle and other tissues adapt to the oxidation of fatty acids. Brain and some other organs utilize ketone bodies that are formed under these conditions. तो क्या होता है कि जब फास्टिंग कंडीशंस होती हैं, फास्टिंग कंडीशंस यानी कि जब ब्लड ग्लूकोज लेवल्स बहुत लो हो जाते हैं, ठीक है, दे आर नॉट देयर टू बी बर्न फॉर एनर्जी अंडर फास्टिंग कंडीशंस, मसल और दूसरे टिश्यूज जो हैं वो जो बॉडी में स्टोर्ड फैट्स होते हैं, ठीक है, उनसे एनर्जी गेन करते हैं। ठीक है, सो मसल एंड अदर टिश्यूज दे अडेप्ट टू ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स। तो बजाय ग्लूकोज के फैटी एसिड्स आर ऑक्सीडाइज्ड फॉर एनर्जी। उसके अलावा जो ब्रेन है, ब्रेन और एंड सम अदर ऑर्गन्स, मेनली ब्रेन जो है इट कैन नॉट यूज फैटी एसिड से एनर्जी नहीं गेन कर सकता। ब्रेन जो है ना, ब्रेन का जो
प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है वो ग्लूकोज ही है, ठीक है। ग्लूकोज के अलावा फैटी एसिड्स, क्योंकि फैटी एसिड ऑक्सीडेशन ब्रेन में नहीं हो सकती है, ठीक है। तो अगर ग्लूकोज नहीं तो फिर ब्रेन क्या यूज करता है, ब्रेन यूज करते हैं कीटोन बॉडीज, ठीक है। ब्रेन कैन यूज कीटोन बॉडीज फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो अंडर फास्टिंग कंडीशन कह लो, या अंडर जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं, जब ब्लड ग्लूकोज लेवल स्लो होते हैं और बाहर से भी ग्लूकोज नहीं आ रहा होता है, क्योंकि फास्टिंग कंडीशन है ना, तो बाहर से भी ग्लूकोज नहीं आ रहा होता है, तो उस टाइम पे मसल्स एंड बाकी टिश्यूज जो है दे यूज फैटी एसिड ऑक्सीडेशन फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ एनर्जी. Brain and some other organs use ketone bodies for extraction of energy. Now, what is the significance of blood glucose as an analyte? So, blood glucose as an analyte is used for diagnosis of diabetes and diagnosis of hypoglycemia. ठीक है, तो ब्लड में आप ग्लूकोज को अगर मेजर करेंगे तो किस लिए मेजर करेंगे, इसलिए ताकि डायबिटीज का डायग्नोसिस हो सके और ये पता चल सके कि कहीं ब्लड ग्लूकोज लेवल्स बहुत लो तो नहीं है, फॉर डायग्नोसिस ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया. नाउ लेट अस कम ओवर टू डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज. अब इसमें क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज इज इम्पोर्टेंट फॉर डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज, क्योंकि अगर अनडायग्नोस्ड रह जाए डायबिटीज, अगर डायबिटीज का सही टाइम पे डायग्नोसिस ना हो तो लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज इसके डेबिलिटेटिंग होते हैं, ठीक है. डायबिटीज के जो लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज हैं दीज आर डेबिलिटेटिंग. इसमें दे कैन बी अ ब्लाइंडनेस, दे कैन बी रीनल फेलियर, दे कैन बी एम्पुटेशंस. एम्पुटेशंस मतलब ऑर्गन्स को काट के निकालना पड़ सकता है क्योंकि इसमें गैंग्रीन हो सकता है, ठीक है. इसके अलावा देयर इज इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज. सो डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज इज वेरी इंपॉर्टेंट. So let us have a look on the criteria for the diagnosis of diabetes mellitus given by WHO. तो WHO ने 2006 में क्राइटेरिया दिया था फॉर डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस. उन्होंने कहा था कि अगर रैंडम ग्लूकोज, अगर रैंडम ब्लड ग्लूकोज अगर 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है या उससे ज़्यादा है तो, और फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज अगर 120 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है या उससे ज़्यादा है तो हम कहेंगे कि तो डायबिटीज है, तो हम कहेंगे कि डायबिटीज है, ठीक है. यहाँ पे आई टेल यू अबाउट द कन्वर्जन फैक्टर, क्योंकि यहाँ पे ना कुछ लोग जो हैं, इंडिया में तो हम लोग ज़्यादातर मिलीग्राम पर डेसीलीटर यूनिट यूज़ करते हैं, लेकिन बाहर कई जगह पे मिलीमोल्स पर लीटर यूनिट्स का इस्तेमाल होता है. तो आपको कन्वर्जन के बारे में भी पता होना चाहिए. लेट अस हैव अ लुक ऑन द कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स फ्रॉम मिलीमोल्स पर लीटर ग्लूकोज टू मिलीग्राम पर डेसीलीटर. उसमें क्या होता है कि अगर वैल्यू अगर मिलीमोल्स पर डेसीलीटर में है, मिलीमोल्स पर लीटर में अगर वैल्यू है तो उसको सिंपली आपको 18 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है. 18 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी मिलीग्राम पर डेसीलीटर में. फॉर एग्जांपल यहाँ पे 11.1 मिलीमोल्स पर लीटर है अगर वैल्यू, ठीक है. आपको उसको मिलीग्राम पर डेसीलीटर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि इंडिया में हम लोग मिलीग्राम पर डेसीलीटर में ही यूज़ करते हैं वैल्यूज़ को. तो अगर आपको कन्वर्ट करना है तो यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाय 18, तो उससे आपको जो वैल्यू मिलेगी दैट विल बी इन मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है. तो ये क्लियर है, ये जनरली सबको पता ही होता है. तो WHO 2006 के अकॉर्डिंग अगर आपका रैंडम ब्लड ग्लूकोज वो 200 मिलीग्राम या उससे ज़्यादा है और फास्टिंग ग्लूकोज अगर 126 मिलीग्राम या उससे ज़्यादा है तो इस्टेब्लिश होता है कि डायबिटीज़ है, ठीक है. लेकिन ऐसा तब होता है सिंगल रिजल्ट, एक बार का रिजल्ट, अगर एक बार में ये रिजल्ट आता है बट अलॉन्ग विद द सिम्टम्स, ठीक है. एक बार में ये रिजल्ट आता है कि जो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज है 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा है और जो रैंडम ब्लड ग्लूकोज है वो 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा है. अगर एक सिंगल टाइम में अगर आपको ये रिजल्ट मिलता है अलॉन्ग विद द सिम्टम्स, अगर पेशेंट को बहुत प्यास भी लगती है, पेशेंट हैज़ पॉलीडिप्सिया और पेशेंट हैज़ पॉलीयूरिया, उसको बहुत पेशाब आ रहा है, कि पेशेंट हैज़ पॉलीफेजिया, उसको बहुत भूख लग रही है, तो अलॉन्ग विद दीज सिम्टम्स, ठीक है, साथ ही साथ उसका वेट भी गिरता चला जा रहा है, तो भी आप कह सकते हो कि उसको डायबिटीज़ है सिंगल टेस्ट रिजल्ट आने पे, ठीक है. इन द एब्सेंस ऑफ सिम्टम्स, अगर रिजल्ट तो आ रहा है
126 से फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज 126 से ज़्यादा आ रहा है, और रैंडम ब्लड ग्लूकोज 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा आ रहा है, लेकिन कोई सिम्टम नहीं है अगर, तो उसमें फिर सिंगल रिजल्ट जो है वो सफिशिएंट नहीं होता। फिर उसके बाद कुछ और टेस्ट भी करने होते हैं, ठीक है। और या यही इसी टेस्ट को रिपीट करना होता है एट डिफरेंट डेज, एट डिफरेंट टाइम्स, ठीक है। तो पता चलता है कि तो इस्टेब्लिश हो सकता है कि डायबिटीज़ है। इसके अलावा HbA1c और ओरल ब्लड ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट भी ज़रूरी होते हैं इस्टेब्लिश करने में कि डायबिटीज़ है। ओके, क्योंकि HbA1c जो है मैं आपको बताऊंगी, वो 3 महीने का उसमें डाटा आता है कि 3 महीने तक ब्लड ग्लूकोज लेवल्स कितने रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आगे बढ़ते हैं। The other tests required for diagnosis of diabetes are HbA1c, glycated plasma proteins, microalbumin and oral glucose tolerance test. तो इनको भी एक एक करके देखते हैं। तो HbA1c जो है दैट इज ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन। तो HbA1c जो है दैट इज यूज्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज। तो इसमें क्या है कि HbA1c के लेवल अगर 6.5% से अबव आते हैं तो दैट इज अ कट पॉइंट फॉर डायग्नोसिस, डायग्नोजिंग डायबिटीज। तो इसका मतलब है कि डायबिटीज है। तो इसको अच्छे से समझने के लिए एक बार आप लोग लाल पैथ लैब की रिपोर्ट डाउनलोड करके आप लोग देख सकते हैं इंटरनेट पे। तो अब हम देखते हैं ग्लाइकेशन ऑफ प्रोटीन्स, थोड़ा सा और देख लेते हैं इसको। अब जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है इट कैन रिएक्ट spontaneously and non-enzymatically with free amino groups on proteins to form covalent glycated proteins. तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो होते हैं दे हैव अ टेंडेंसी टू ग्लाइकेट प्रोटीन्स, ठीक है। दे हैव अ टेंडेंसी टू कोवेलेंटली अटैच टू द प्रोटीन्स ऑफ द बॉडी, ठीक है, एंड दैट टू स्पॉन्टेनियसली एंड नॉन एंजाइमेटिकली। तो ये जो ग्लाइकेशन होती है प्रोटीन्स की हमारी बॉडी में, ठीक है, वेयर ग्लूकोज गेट्स अटैच्ड टू द प्रोटीन्स कोवेलेंटली, ये नॉन एंजाइमेटिक होती है, इसके लिए कोई एंजाइम की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो स्पॉन्टेनियस होता है और नॉन एंजाइमेटिक होता है। तो अब कितना एक्सटेंट ऑफ ग्लाइकेशन, यानी कितनी एक्सटेंट तक ग्लाइकेशन होगी, दैट डिपेंड्स ऑन द एवरेज ग्लूकोज टू विच द प्रोटीन इज एक्सपोज्ड, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि कितना ग्लूकोज प्रोटीन्स के साथ एक्सपोज हुआ है, कितना ग्लूकोज और प्रोटीन्स का आपस में एक्सपोजर हुआ है, ठीक है। तो ज़्यादा ग्लूकोज होगा तो ज़्यादा एक्सपोजर होगा, ठीक है। मोर द ग्लूकोज मोर विल बी द ग्लाइकेशन। ये जो ग्लाइकेशन है दैट इज correlated with the पैथोलॉजी ऑफ द डायबिटीज़। डायबिटीज़ में जो सारे कंडीशन होती है, जो उसके उसमें जो न्यूरोपैथी नेफ्रोपैथी वगैरह ये सब होता है, उसमें ग्लाइकेशन का रोल रहता है, ठीक है। So glycation of the structural proteins might be responsible for long-term complications of diabetes. तो ये जो प्रोटीन स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स का ग्लाइकेशन है, इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं डायबिटीज़ की। इसमें एक एग्जांपल होता है जैसे जो ब्लाइंडनेस होती है, कई पेशेंट्स में ब्लाइंडनेस हो जाती है, कई पेशेंट्स में क्या होता है रेटिनोपैथी होती है, ठीक है, उनका रेटिना खराब हो जाता है। तो उनका रेटिना खराब होने के पीछे भी जो रेटिनल प्रोटीन्स होते हैं, सम रेटिनल प्रोटीन्स, दे आर ग्लाइकेटेड, ओके। So some lens proteins are glycated in diabetes. तो अब क्या है कि जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स हैं these are also glycated, ठीक है। हीमोग्लोबिन प्रोटीन्स होते हैं, so they are also glycated. Now in normal situation glycated hemoglobin forms about 5% of the circulating hemoglobin, ठीक है। तो RBCs में around 5% hemoglobin molecules are glycated, that is in normal situation, ठीक है। और एक बार जब ग्लाइकेशन हो जाती है हीमोग्लोबिन की, तो ये जो ग्लाइकेशन होती है क्या होती है, इरिवर्सिबल होती है। एक बार हो गई ग्लाइकेशन तो हो गई। तो उसमें क्या है कि जो ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन है इट स्टेज विद इन द रेड ब्लड सेल फॉर इट्स लाइफ टाइम, तो पूरे लाइफ जो है वो रहेगा। फिर एक बार ग्लाइकेशन हो गई तो हो गई, क्योंकि जो ग्लाइकेशन है वो इरिवर्सिबल होती है, ठीक है। सो मोर ब्लड ग्लूकोज लीड्स टू मोर ग्लाइकेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। तो अगर ज़्यादा ब्लड ग्लूकोज लेवल्स होंगे तो ज़्यादा ग्लाइकेशन होगी। सो मोर जो ग्लाइकेशन हीमोग्लोबिन की,
ठीक है, दैट इंडिकेट्स पुअर डायबिटिक कंट्रोल। ठीक है, दैट इंडिकेट्स पुअर डायबिटिक कंट्रोल। Now, what is the importance of HbA1c test? The importance of HbA1c test is for the diagnosis of diabetes. The other one is to monitor the blood glucose levels in diabetic patients. तो डायबिटिक पेशेंट जो है, ऑलरेडी इस्टेब्लिश डायबिटिक पेशेंट है, वो कितना कंट्रोल कर पा रहा है अपने ब्लड शुगर लेवल्स को, उनको मॉनिटर करने के लिए भी HbA1c की इम्पोर्टेंस होती है। ठीक है, क्योंकि जो टेस्ट है HbA1c, इट इवैल्यूएट्स एवरेज अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड ओवर लास्ट 2 to 3 months। तो पिछले 2 से 3 महीने ब्लड ग्लूकोज लेवल्स कैसे रहे। ठीक है, और बहुत कभी अगर अच्छा कंट्रोल होगा तो फिर बढ़ने नहीं चाहिए ब्लड ग्लूकोज लेवल्स, लेकिन अगर पुअर कंट्रोल होगा तो ब्लड ग्लूकोज लेवल्स में फ्लक्चुएशन होगी। तो पिछले 2 से 3 महीने में कितना रहा ब्लड ग्लूकोज लेवल्स, कैसा रहा कंट्रोल। तो HbA1c जो है वो आपको पिक्चर क्लियर करता है। ठीक है, इट इवैल्यूएट्स द एवरेज अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड ओवर द लास्ट 2 to 3 months। ठीक है, बिकॉज एक बार जब बन जाता है हीमोग्लोबिन, एक बार जब ग्लाइकेट हो जाता है तो फिर वो रहता है। ठीक है, इट स्टेज फॉर इन द आरबीसी। फॉर आरबीसी की लाइफ टाइम क्या होती है, 120 days होती है। ठीक है, तो एक बार बन गया तो वो फिर रहेगा 120 days तक। तो लम सम ये 2 से 3 महीने का मान के चलते हैं कि 2 से 3 महीने का ये पिक्चर देता है ग्लूकोज की ब्लड में। Now the next test which is used for in case of diabetes is glycated plasma proteins। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो प्लाज्मा फ्रक्टोसामीन है, दैट इज अ मेजर ऑफ ग्लाइकेटेड प्लाज्मा प्रोटीन्स। ठीक है, बिकॉज अगर ग्लूकोज लेवल्स अगर ब्लड में बहुत ज़्यादा है तो प्लाज्मा प्रोटीन्स की भी ग्लाइकेशन होगी। ठीक है, लेकिन फिर भी HbA1c जो है दैट इज द प्रेफर्ड टेस्ट ओवर द प्लाज्मा फ्रक्टोसामीन, क्योंकि ज़्यादा वेल स्टैंडर्डाइज्ड है, इस पर काफ़ी काम हुआ है, तो इसको प्रेफर किया जाता है। लेकिन फ्रक्टोसामीन मेजरमेंट इज डन इन पेशेंट्स विद हीमोग्लोबिनोपैथीज। तो अगर इस तरह के पेशेंट्स हैं जिनमें हीमोग्लोबिन ही उनका ठीक नहीं है, अगर प्रॉब्लम विद हीमोग्लोबिन, ठीक है, या आरबीसी से रिलेटेड प्रॉब्लम अगर है, तो ऐसे पेशेंट्स में फिर आप HbA1c को मेजर करके आप डायबिटीज़ को डायग्नोस या मॉनिटर नहीं कर सकते। इन दैट केस आपको प्लाज्मा फ्रक्टोसामीन यानी कि ग्लाइकेटेड प्लाज्मा प्रोटीन्स को ही मेजर करना होगा। क्या है ये? नेक्स्ट इज माइक्रोएल्ब्यूमिन्यूरिया। ठीक है, दैट इज लेवल्स ऑफ माइक्रोएल्ब्यूमिन इन और लेवल्स ऑफ एल्ब्यूमिन इन यूरिन। ठीक है, so this test is done to check the loss of albumin in urine। ठीक है, जो माइक्रोएल्ब्यूमिन्यूरिया है, ठीक है, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा ना, माइक्रोएल्ब्यूमिन्यूरिया यानी कि स्मॉल अमाउंट ऑफ एल्ब्यूमिन इन द यूरिन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एल्ब्यूमिन क्या है, प्रोटीन है, इट इज नॉट सपोज टू बी फिल्टर्ड थ्रू द यूरिन और थ्रू द किडनी। ठीक है, इट इज नॉट टू बी एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द बॉडी एल्ब्यूमिन। लेकिन फिर भी इन केस ऑफ रेटिनोपैथी, इन केस ऑफ डायबिटिक नेफ्रोपैथी, ठीक है, इन दैट केस टू चेक कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो डायबिटीज़ है वो उसमें एक कॉम्प्लिकेशन जो है डायबिटिक नेफ्रोपैथी, पेशेंट को जो है वो नेफ्रोपैथी होने वाली है। ठीक है, इसके डायबिटिक नेफ्रोपैथी के प्रोग्रेशन को चेक करने के लिए माइक्रोएल्ब्यूमिन किया जाता है। ठीक है, जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनमें चेक करने के लिए कि कहीं उनको नेफ्रोपैथी तो नहीं होने वाली है, बिकॉज ये जो यूरिन में जो एल्ब्यूमिन है दैट इंडिकेट प्रोग्रेशन ऑफ डायबिटिक नेफ्रोपैथी। ठीक है, जब प्रोटीन्स यूरिन से जब यूरिन में आने लगते हैं, जब किडनी से फिल्टर होने लगते हैं, तो इसका मतलब है कि किडनीज में प्रॉब्लम्स आ गई है या आने वाली है, आगे चल के और प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। ठीक है, किडनीज खराब होने वाली हैं। तो इन दैट केस माइक्रोएल्ब्यूमिन्यूरिया इज डन, दैट इज यूरिन इन एल्ब्यूमिन इन यूरिन। ठीक है, तो अगर माइक्रोएल्ब्यूमिन्यूरिया मिल जाता है, अगर माना कि पेशेंट में अगर माइक्रोएल्ब्यूमिन्यूरिया है, तो उसमें फिर वो बाय मेटिकुलस कंट्रोल ऑफ ब्लड ग्लूकोज और हाइपरटेंशन, इन दो चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। तो ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को कंट्रोल करते हैं, दूसरा हाइपरटेंशन पे नज़र रखते हैं, पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर पे नज़र रखते हैं। ठीक है, उसको ज़्यादा फ्लक्चुएट होने नहीं देते हैं ताकि
आगे चल के लिवर जो है वो पूरी तरह से डैमेज ना हो जाए उसको। लाइक डैमेज आगे चल के होती है लेकिन उसका जो प्रोग्रेशन है वो स्लो डाउन कर देते हैं, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा माइक्रो एल्ब्यूमिन। तो माइक्रो एल्ब्यूमिन जो है वो डायग्नोसिस के लिए नहीं होता, डायबिटीज की डायग्नोसिस के लिए नहीं होता। ये आगे चल के कहीं डायबिटिक नेफ्रोपैथी ना हो उसकी प्रोग्रेशन को चेक करने के लिए होता है। ओके, नाउ कमिंग ओवर टू ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट जो है दैट इज डन फॉर डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज and this test is done to check how quickly the glucose is cleared from the blood, ठीक है। तो इट इज समवट लाइक मेजरिंग द स्टैंडर्ड फास्टिंग एंड पोस्ट प्राइमरी ब्लड ग्लूकोज लेवल्स, लेकिन ये थोड़ा सा इसका प्रोसीजर जो है वो अलग होता है, ठीक है। तो ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट जो है इसका प्रोसीजर अलग होता है क्योंकि ये ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट तो जो टेस्ट होता है जो दैट इज समवट क्लोज टू जो फास्टिंग और पीपी टेस्ट होता है, ठीक है। जब भी कभी आप करवाते हो अपना टेस्ट तो डॉक्टर कहते हैं ना फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज और पोस्ट प्राइमरी पीपी ब्लड ग्लूकोज करने के लिए कहते हैं। तो उसमें होता है कि आप रात भर फास्टिंग रखते हो, आपकी 10 to 12 आवर्स की फास्टिंग होती है, ठीक है। फिर आप अपना ब्लड देते हो तो दैट इज योर फास्टिंग ब्लड, उसमें आपका फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज मेजर होता है। फिर आपको कहा जाता है कि घर जाइए आप खाना खाइए, आप पेट भर के खाना खाइए और खाना खाने के 2 घंटे के बाद फिर आपका दोबारा से ब्लड टेस्ट लिया जाता है दैट इज कॉल्ड पोस्ट प्राइमरी ग्लूकोज टेस्ट, ठीक है। तो ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट में भी वो भी कुछ मिलता जुलता ही है, ठीक है। इसमें से फर्क सिर्फ इतना होता है कि इसमें आप जो आपको घर भेज दिया जाता है कि आप खाना खुद खाओ तो उसमें आपकी मर्जी होती है आप कुछ भी खाओ, लेकिन यहाँ पे आपकी मर्जी नहीं होती। जब ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होता है तो उसमें आपको एक अमाउंट ऑफ ग्लूकोज दिया जाता है पीने के लिए, आपको पीना पड़ता है और फिर उसके बाद आपका 2 घंटे के बाद फिर दोबारा ब्लड टेस्ट होता है। तो लेट्स हैव अ लुक ऑन द प्रोसीजर, ठीक है। इसमें क्या होता है OGTT, ठीक है, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट इज यूजुअली परफॉर्म्ड आफ्टर एन ओवरनाइट फास्ट। ओवरनाइट फास्ट होता है तो उसमें क्या होता है पेशेंट इज अलाउड टू ड्रिंक वाटर बट वो कुछ खा नहीं सकता, ऑब्वियसली फास्ट है तो वो कुछ खा नहीं सकता लेकिन सिर्फ पानी पी सकता है बस। उसमें क्या होता है कि ब्लड इज कलेक्टेड फॉर ग्लूकोज, तो पहले ब्लड कलेक्ट कर लिया जाता है, टेस्ट परफॉर्म करने से पहले ब्लड लिया जाता है और दैट इज फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज, ठीक है। ब्लड लेने के बाद फिर पेशेंट को 75 ग्राम एनहाइड्रस ग्लूकोज दिया जाता है, ठीक है। 75 एनहाइड्रस ग्लूकोज dissolved in 250 to 300 ml of water. It is given by mouth over a period of 5 minutes. तो 5 मिनट के अंदर आपको ये 250 से 300 ml पानी जिसमें कि 75 ग्राम ग्लूकोज डिजोल्व रहता है वो आपको पीना होता है, ठीक है। और जैसे अगर छोटे बच्चे होते हैं तो उनको 1.7 ग्राम ग्लूकोज पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से दिया जाता है, ठीक है, अगर बच्चों में करना हो तो। और बड़ों में 75 ग्राम्स इन 250 to 300 ml वाटर, तो 5 मिनट के अंदर पीना होता है, ठीक है। तो ये मेरा टेस्ट हो चुका है, ये ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, एंड इट इज इतना मीठा होता है कि इसको पीना बहुत बहुत मुश्किल होता है। मतलब आपको ऐसा लगता है कि उल्टी आ जाएगी, सारा बाहर निकल आएगा, बहुत डिफिकल्ट होता है इसे पीना, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा ये प्रोसीजर जो है ये थोड़ा सा टीडियस होता है। अच्छा उसके बाद अच्छा फिर जब आपने पी लिया एक बार तो उसके बाद ड्यूरिंग द टेस्ट पेशेंट शुड बी सिटिंग अप और लाइंग डाउन ऑन द राइट साइड। तो पेशेंट को कहा जाता है कि या तो आप बैठे रहिए या आप राइट साइड पे करके आप लेटे रहिए, इससे आपको जो स्टमक है वो जल्दी एम्प्टी होगा, ठीक है। स्टमक जल्दी एम्प्टी होगा मतलब आपके पेट में जो इतना सारा वो ग्लूकोज वाला पानी है, ग्लूकोज है वो जल्दी से जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगा, अंदर चला जाएगा बॉडी में, ठीक है। एंड आफ्टर 2 आवर्स ब्लड स्पेसिमेंस आर कलेक्टेड, और 2 घंटे के बाद आपके ब्लड लिया जाएगा और उसमें प्लाज्मा में ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को मेजर किया जाएगा। अब देख लेते हैं कि रिजल्ट्स इसके क्या होते हैं। तो नॉर्मल इंडिविजुअल में क्या रिजल्ट आने चाहिए, तो नॉर्मल इंडिविजुअल में जो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल्स हैं वो 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होनी चाहिए, ठीक है। और 2 घंटे के बाद टेस्ट परफॉर्म होने के 2 घंटे के बाद के जो लेवल्स है वो 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होने चाहिए, ठीक है। तो आप नॉर्मल हो अगर ऐसा आता है, लेकिन अगर डायबिटीज है उसमें क्या है कि फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल्स अगर 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम आएंगे तो, और 2 घंटे के बाद वाला जो है वो 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम आएगा तो आप कहेंगे कि
डायबिटीज़ है। ठीक है, इसके अलावा एक बीच की कंडीशन भी होती है, एक नॉर्मल और डायबिटीज़ के बीच की भी कंडीशन होती है, दैट इज इम्पेयर्ड तो दैट इज इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज और इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अगर इम्पेयर्ड है, अगर माना डायबिटीज नहीं है लेकिन एक इम्पेयर्ड है अगर आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल्स, तो उसमें जो इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज लेवल्स अगर 110 से 126 के बीच में अगर आते हैं, ठीक है, नॉर्मल क्योंकि 110 है, अगर 110 से ज़्यादा है और 126 से कम है, इसके बीच में अगर लेवल्स आते हैं तो कहेंगे कि इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज है। ठीक है, वहीं अगर अगर आपका ग्लूकोज टॉलरेंस 2 घंटे के बाद वाला अगर 140 से 200 मिलीग्राम पर डेसिलीटर के बीच में आता है तो कहेंगे इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस है। तो ठीक है, ये क्लियर है आपको? सो लेट मी नाउ टॉक अबाउट डायबिटीज मेलाइटिस। थोड़ा सा डायबिटीज मेलाइटिस को जनरल डिस्कशन इसका कर लेते हैं। इसमें क्या है कि जो डायबिटीज मेलाइटिस है डेवलप इनटू टू सिचुएशन, दो सिचुएशंस होती हैं जब डायबिटीज मेलाइटिस डेवलप होता है। इट इज अ डिजीज। ये कब डेवलप होता है? व्हेन पेनक्रियाज डज नॉट प्रोड्यूस एनफ इंसुलिन, जब पेनक्रियाज इंसुलिन नहीं बना पा रही होती है। दूसरा तब जब बॉडी इंसुलिन को इफेक्टिवली यूज नहीं कर पा रही होती है। ठीक है, सो व्हेन पेनक्रियाज डज नॉट प्रोड्यूस एनफ इंसुलिन, एंड सेकंड इज व्हेन बॉडी कैन नॉट इफेक्टिवली यूज द इंसुलिन इट प्रोड्यूसेस। ठीक है, यानी कि या तो पेनक्रियाज इंसुलिन ही नहीं बना पा रही है ठीक से, या फिर इंसुलिन तो बना रही है पेनक्रियाज लेकिन हमारी बॉडी जो है उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रही है इंसुलिन को। तो इन दो सिचुएशंस में डायबिटीज मेलाइटिस डेवलप होती है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि हाइपरग्लाइसीमिया होता है। ठीक है, तो हाइपरग्लाइसीमिया ओवर टाइम लीड्स टू डैमेज टू बॉडी स्पेशली नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स। तो क्रॉनिक हाइपरग्लाइसीमिया जब लंबे समय तक ब्लड ग्लूकोज लेवल्स हाई रहते हैं, दैट लीड्स टू डैमेज ऑफ द नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स। ठीक है, और जो डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, तो मैंने आपको बताया था कि जो ग्लाइकेशन होती है प्रोटीन्स की, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इन द डैमेज ऑफ द जो भी बॉडी में डैमेज होता है डायबिटीज में। तो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस जो होती हैं डायबिटीज़ की, वो होती है रेटिनोपैथी यानी कि आइज का डैमेज हो जाना, न्यूरोपैथी यानी कि नर्व्स का डैमेज हो जाना, और नेफ्रोपैथी यानी कि किडनीज का डैमेज हो जाना। ठीक है, और इसके अलावा कार्डियोवास्कुलर डिजीज भी एक बहुत बड़ा रिस्क होता है इन केस ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस। नाउ जो डायबिटीज है उसके कुछ सेकेंडरी कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं, मतलब जो उसके कुछ सेकेंडरी रीजंस भी हो सकते हैं, यानी किसी और कुछ बीमारियां हैं उनकी वजह से भी डायबिटीज हो सकती है, अदर देन द टू रीजन जो मैंने आपको बताया कि पेनक्रियाज इंसुलिन नहीं बना पा रही है, या फिर इंसुलिन जो प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन वो यूज नहीं हो पा रहा है। ठीक है, सेल्स कैन नॉट यूज इंसुलिन, इसको इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। ठीक है, बॉडी हैज बिकम रेजिस्टेंट टू द इंसुलिन। लेकिन ये दो प्राइमरी रीजंस है डायबिटीज होने के। इसके अलावा सेकेंडरी रीजंस भी हो सकते हैं। ठीक है, किसी और रीजन की वजह से आपको डायबिटीज, पेशेंट को डायबिटीज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल कि पेनक्रियाज की अगर कोई डिजीज है, पेनक्रियाटाइटिस है, अगर पेनक्रियाज में इंफ्लेमेशन है तो उससे इंसुलिन नहीं सिक्रीट हो पा रहा है ठीक से, तो उसकी वजह से भी हो जाती है डायबिटीज। उसके अलावा अगर एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स हैं जैसे कुशिंग सिंड्रोम है, ठीक है, कुशिंग सिंड्रोम में इंसुलिन एक्शन जो उसका एंटागोनिज्म, इस तरह के हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि इंसुलिन के एक्शन को एंटागोनाइज करते हैं। ठीक है, उसके एक्शन को काटते हैं। ठीक है, उसके अलावा बहुत सारी ऐसी ड्रग्स हैं जो कि बॉडी में ग्लूकोज टॉलरेंस को कम कर देती है। फॉर एग्जाम्पल मेड्रोल। अब मेड्रोल जो है, ठीक है, अभी आप लोगों ने देखा ना कोरोना के टाइम पे क्या हुआ, जो सेकेंड वेव आई थी कोरोना की, ठीक है, वो अप्रैल 2021 में जो आई थी, उसमें ये मेड्रोल की वजह से डायबिटीज के केसेस बहुत ज़्यादा आए थे। ठीक है, तो ये तो खुद मैंने ऑब्जर्व किया था कि जो मेड्रोल है, मेड्रोल क्या है? कॉर्टिकोस्टेरॉइड है। इट इज़ अ स्टेरॉइडल हार्मोन, इट इज़ अ स्टेरॉइड, और ये जो है ना, ये एंटी इंफ्लेमेटरी स्टेरॉइड होता है और ये बहुत इफेक्टिवली इन्फ्लेमेशन को कम करता है। लेकिन विड्रॉल जो है ना, ग्लूकोज टॉलरेंस को बहुत कम कर देता है बॉडी में। ठीक है, तो जब पेशेंट विड्रॉल ले रहा होता है तब उसके जो ब्लड ग्लूकोज लेवल्स होते हैं वो हाई रहते हैं। ठीक है, मैंने ये ऑब्जर्व किया था खुद हमारे घर में। मेरे फादर हैं, ही इज़ नॉट अ डायबिटिक,
पर हाँ उनमें इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस है। उनके जो लेवल्स हैं वो थोड़े इम्पेयर्ड रहते हैं, नॉर्मल से थोड़े ज़्यादा रहते हैं। तो उनको मेड्रोल दिया गया था और मैंने देखा कि मेड्रोल की वजह से उनके जो ब्लड ग्लूकोज लेवल्स हैं वो बहुत 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 हाई भी हो गए थे। ठीक है, 450 मिलीग्राम पर डेसीलीटर भी चला गया था 2 आवर्स आफ्टर मील वाला जो वैल्यू है। तो मेड्रोल जो इट हैज़ अ एडवर्स इफेक्ट ऑन द ग्लूकोज टॉलरेंस। तो इसमें क्या होता है कि कुछ टाइम के लिए डायबिटीज़ मेलाइटिस डेवलप होती है कुछ टाइम के लिए। मतलब जो भी है, डायबिटीज मेलाइटिस तो डेवलप नहीं होता है, लेकिन हाँ कुछ टाइम के लिए हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है। पर जैसे ही ये ड्रग आप विड्रॉ कर लोगे, ड्रग जब देना बंद कर दोगे, तो फिर जो है वो बॉडी की टेंडेंसी रहेगी, जो ग्लूकोज होम्योस्टेसिस है वो नॉर्मल आ जाएगा। तो ये तो सेकेंडरी रीजन है। ठीक है, अब देखते हैं प्राइमरी डायबिटीज मेलाइटिस जो है वो दो तरह की हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस। तो अब हम इसमें टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज और जेस्टेशनल डायबिटीज ये भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कमिंग ओवर टू टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस। तो टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस को जुवेनाइल डायबिटीज भी कहते हैं। ठीक है, ये ज़्यादातर यंग जो एडल्ट होते हैं, यंग बच्चे 15 16 17 18 19 साल के, उनमें ये ज़्यादा होती है। ठीक है, लेकिन ये किसी भी एज में हो सकती है, ये बहुत छोटी एज में भी हो सकती है। आजकल ऐसे केसेस आ रहे हैं सामने और छोटे बच्चों को भी डायबिटीज़ हो रही है, टाइप 1 डायबिटीज़। और ये बड़े लोगों को भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर ये जुवेनाइल्स को होती है। ठीक है, यंग एडल्ट्स को। टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होता है, देर इज पॉलीयूरिया, देर इज पॉलीडिप्सिया एंड देर इज ग्लाइकोसूरिया। और साथ ही साथ इसमें देर इज वेट लॉस एंड देर इज कीटोएसिडोसिस। ठीक है, इसमें क्या होता है कि पॉलीयूरिया, आपको पता है बहुत ज़्यादा पेशाब आना, पॉलीडिप्सिया बहुत ज़्यादा प्यास लगना, ठीक है, थर्स्ट, बहुत ज़्यादा थर्स्ट लगना, पॉलीडिप्सिया। ग्लाइकोसूरिया यानी कि यूरिन में ग्लूकोज का निकल जाना बाहर, दैट इज ग्लाइकोसूरिया। ये सब तो सिम्टम्स होती हैं। इसके साथ साथ देयर इज वेट लॉस एंड देयर इज कीटोएसिडोसिस। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब बॉडी, क्योंकि इंसुलिन जो है ना के बराबर ही निकलता है। टाइप 1 डायबिटीज़ में इंसुलिन जो है वो ना के बराबर ही निकलता है। तो जब इंसुलिन नहीं होता है तो सेल्स तो ग्लूकोज को इस्तेमाल कर नहीं सकते, क्योंकि ग्लूकोज सेल्स की एंट्री बिल्कुल बंद हो जाती है। बिना इंसुलिन के ग्लूकोज सेल्स के अंदर जा नहीं पाते हैं। तो उसकी वजह से सेल जो है वो फैटी एसिड्स को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फिर जो सेल्स एनर्जी गेन करते हैं वो कैसे करते हैं, फैटी एसिड ऑक्सीडेशन से एनर्जी गेन करते हैं। इसमें जो इन टाइप 1 डायबिटीज, जो बॉडी की जो कंडीशन होती है ना और सिचुएशन होती है ना, वो ऐसी होती है जैसे स्टारवेशन के दौरान होती है। जब स्टारवेशन होती है, ठीक है, स्टारवेशन में क्या होता है, ग्लूकोज मिल नहीं रहा होता है। तो ग्लूकोज ना मिलने की वजह से फिर जो बॉडी के जो फैट्स होते हैं, ठीक है, जो एडिपोसाइट्स में जो फैट स्टोर रहते हैं, वो सारे मूव करते हैं, वो सारे फैट स्टोर जो है वो मूव करते हैं। उनमें से जो फैट्स हैं वो निकल निकल के आते हैं और फैटी एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं, एंड देन दीज आर टेकन अप बाय द सेल्स। और सेल्स के अंदर फिर फैटी एसिड ऑक्सीडेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। जब फैटी एसिड ऑक्सीडेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है तो एनर्जी तो मिलती है, एनर्जी तो मिलती है सेल्स को, लेकिन साथ ही साथ कीटोन बॉडीज भी फॉर्म हो जाती हैं। और कीटोन बॉडीज ज़्यादा अमाउंट में फॉर्म हो जाती हैं, जिससे कि कीटोएसिडोसिस होता है। ठीक है, उससे बॉडी का जो एसिड है, पीएच है, वो लो हो जाता है। ठीक है, कीटोएसिडोसिस, कीटोन बॉडीज की वजह से बॉडी का जो पीएच है वो ड्रॉप हो जाता है। ठीक है, तो ये कॉम्प्लिकेशंस होती हैं इन केस ऑफ टाइप 1 डायबिटीज। अब यहाँ पे क्या होता है, इंसुलिन इज रिक्वायर्ड फॉर इट्स ट्रीटमेंट, क्योंकि कमी जो है वो इंसुलिन की ही है। तो यहाँ पे इंसुलिन अगर दिया जाए पेशेंट को तो फिर वो ठीक हो जाता है, नॉर्मल लाइफ जी सकता है अपनी। टाइप 1 डायबिटीज जो है इट इज़ एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। तो जनरली टाइप 1 डायबिटीज होता है जब पेनक्रियाटिक जो सेल्स होते हैं, बीटा आइलेट सेल्स होते हैं जो कि इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं, जब उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज फॉर्म हो जाती है। ठीक है, व्हेन द इम्यून सिस्टम टर्न अगेन दोज बीटा आइलेट सेल्स ऑफ द पेनक्रियास, वो डैमेज हो जाते हैं सेल्स और वो फिर इंसुलिन सिक्रीट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इंसुलिन बन नहीं पाता और सिक्रीट नहीं हो पाता है। तो इट इज़ एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। कमिंग ओवर टू टाइप 2 डायबिटीज।
तो टाइप 2 डायबिटीज़ जो दैट इज एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज़, तो बड़े लोगों को होता है 40 ईयर्स के बाद। जो लोग हैं उनको टाइप 2 डायबिटीज़ ज़्यादा होता है, लेकिन किसी को भी हो सकता है। आजकल छोटे बच्चों को भी हो रहा है, क्योंकि क्योंकि जो टाइप 2 डायबिटीज़ है दैट इज़ रिलेटेड विद द ओबेसिटी। तो जितनी ज़्यादा ओबेसिटी, आजकल बच्चों में बहुत ओबेसिटी हो रही है, तो उनमें भी टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो बढ़ रहा है। टाइप 2 डायबिटीज़ का जो कॉज है दैट इज इनएडिक्वेट इंसुलिन सिक्रीशन और इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो ये तो है कि हाँ, मतलब इंसुलिन जो है वो कम निकल रहा है, जितना निकलना चाहिए उतना नहीं निकल पा रहा है, ठीक है, पेनक्रियाज से, लेकिन निकल रहा है, लेकिन कम निकल रहा है। लेकिन मेन जो प्रॉब्लम होती है वो होती है इंसुलिन रेजिस्टेंस की, कि जो सेल्स हैं वो दे बिकम इंसुलिन रेजिस्टेंट। तो इंसुलिन रिसेप्टर्स जो सेल्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं। तो इंसुलिन है भी अगर, तो वो बाइंड भी कर रहा है अपने रिसेप्टर्स को, तो आगे वो जो ग्लूकोज इनटेक होना चाहिए, अपटेक होना चाहिए सेल्स के द्वारा, वो नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो इंसुलिन का जो यहाँ पे एक्शन है ना वो इफेक्ट हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है। तो दिस इज रेयर इन चिल्ड्रन, बट जैसे कि ओबेसिटी की प्रेवलेंस बढ़ रही है बच्चों में, तो उनमें भी बढ़ रहा है। So insulin जो है, it inhibits lipid mobilization of fats from adipocytes, as in it inhibits lipolysis. In type 2 diabetes, generally insulin is produced. Ketoacidosis is not common. इसमें क्या होता है कि इंसुलिन जो होता है ना, ये लिपिड मोबिलाइजेशन को इनहिबिट करता है, ठीक है। जो हमारे जो एडिपोसाइट्स में जो फैट स्टोर रहते हैं, ठीक है, उनकी मोबिलाइजेशन को ये रोकता है, ठीक है। और जब वो रोकता है तो फिर वो लिपिड जो है वो मोबिलाइज नहीं होते हैं, वो मोबिलाइज नहीं होते हैं, तो फिर कीटो एसिडोसिस भी जनरली आपको टाइप 2 डायबिटीज में नहीं मिलेगी, ठीक है, क्योंकि इसमें जो बॉडी की जो फैटी एसिड्स को बर्न करके एनर्जी गेन करने की जो टेंडेंसी है वो इतनी नहीं रहती है, क्योंकि इंसुलिन जो है वो रहता है बॉडी में, ठीक है, इंसुलिन तो रहता ही है। तो जो इंसुलिन है वो लिपिड मोबिलाइजेशन को इनहिबिट करते हैं, इसलिए कीटो एसिडोसिस जो है वो टाइप 2 डायबिटीज में बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है। टाइप 1 डायबिटीज में ज़्यादा होती है, क्योंकि टाइप 1 डायबिटीज में फैट मोबिलाइजेशन ज़्यादा होती है, ठीक है, जो स्टोर्ड फैट्स होते हैं वो मोबिलाइज करते हैं, और यहाँ पर फैट मोबिलाइजेशन इतनी नहीं होती, ठीक है। और इसमें इंसुलिन जो है दैट मे बी नीडेड टू कंट्रोल द ब्लड ग्लूकोज लेवल्स। इसमें इंसुलिन दिया जा सकता है ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को कंट्रोल करने के लिए, इन केस अगर इनएडिक्वेट इंसुलिन सिक्रीशन है, ठीक है। इसके अलावा दूसरी ड्रग्स दी जाती हैं, जैसे कि देयर इज वन ड्रग कॉल्ड मेटफॉर्मिन, ठीक है, मेट एंड टाइप 2 डायबिटीज हैज अ स्ट्रॉन्ग हेरिडिटरी लिंक। तो टाइप 2 डायबिटीज जो रन करता है फैमिलीज में, अगर अगर पेरेंट्स को है तो बच्चों को भी हो सकता है, ठीक है। So now coming over to gestational diabetes. So gestational diabetes क्या है? ग्लूकोज इंटॉलरेंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान जो ग्लूकोज इंटॉलरेंस डेवलप होती है दैट इज जेस्टेशनल डायबिटीज। तो इसमें क्या है कि जेस्टेशनल डायबिटीज जो है वो सीरियस कंडीशन होती है, बिकॉज इट इज एसोसिएटेड विद हायर इंसिडेंस ऑफ इंट्रा यूट्रीन डेथ एंड फीटल मालफॉर्मेशन। तो इसमें क्या है कि अगर ये डायबिटीज़ जेस्टेशनल डायबिटीज़ जो है अनडायग्नोज रह जाए, इसमें कुछ किया ना जाए अगर इसको कंट्रोल करने के लिए, तो इसमें इंट्रायूट्रीन डेथ हो सकती है, अंदर यूट्रस में डेथ हो सकती है बेबी की, या फिर इसमें फीटल माल फॉर्मेशन हो सकता है, यानी कि अंदर जो बच्चा है वो उसमें माल फॉर्मेशन हो सकती हैं, ढंग से वो डेवलप ना हो। तो ग्लूकोज इंटॉलरेंस जो है ये डिलीवरी के बाद फिर नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। जेस्टेशनल डायबिटीज़ में जो ग्लूकोज इंटॉलरेंस होता है वो डिलीवरी के बाद नॉर्मल हो जाता है। दिस gestational diabetes mellitus affects approximately 16.5% of pregnancies worldwide। तो आप सोचो कि वर्ल्ड वाइड 16.5% प्रेगनेंसी जो है वो उनमें जेस्टेशनल डायबिटीज होती है, ठीक है। So this number is set to increase with increasing obesity epidemic। तो जैसे जैसे ओबेसिटी का जो प्रेवलेंस है वो बढ़ता जा रहा है वर्ल्ड में, बिकॉज जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ है दैट इज कोरिलेटेड विद द ओबेसिटी।
तो अगर मदर जो है वो ओबीस होगी तो उसमें बहुत हाई चांसेस हैं कि उसकी प्रेगनेंसी के दौरान उसको ग्लूकोज इंटॉलरेंस होगी। ठीक है, तो ऑलरेडी ओवर ऑल ओवर वर्ल्ड 16.5% प्रेगनेंसीज में ग्लूकोज इंटॉलरेंस होती है। लेकिन इसमें अपार्ट फ्रॉम ओबेसिटी और भी रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़। अगर फैमिली में डायबिटीज़ है लोगों को, इसके अलावा एडवांस मेटरनल एज, जब आप ओबीस तो नहीं हो लेकिन आपकी एज ज़्यादा है अगर, ठीक है, एडवांस मेटरनल एज अगर आपकी एज 35 प्लस है तो इन दैट केस, और प्लस हाँ अगर पहले से ही अगर पिछली प्रेगनेंसी में भी अगर जेस्टेशनल डायबिटीज रहा हो तो इन दैट केस ऑल्सो रिस्क फैक्टर हो जाता है कि प्रेगनेंसी में ग्लूकोज इंटॉलरेंस होगी। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है कि फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज और HbA1c लेवल्स जो है वो मेजर किए जाते हैं सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद फिर OGTT टेस्ट किया जाता है फॉर फाइनल कंफर्मेशन ऑफ जेस्टेशनल डायबिटीज। ठीक है, तो प्रेग्नेंट लेडीज में फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल्स और HbA1c लेवल्स देखा जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर अगर लगता है कि लेवल्स में गड़बड़ है, अगर अगर ज़्यादा आ रहे हैं वैल्यूज, तो फिर उसके बाद ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट किया जाता है। ओके, तो जो ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट है दैट इज जनरली डन एट 24 to 28 वीक्स। प्रेगनेंसी के 24 to 28 वीक्स में ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट किया जाता है। ठीक है, इंटरनेशनली एग्रीड क्राइटेरिया फॉर जेस्टेशनल डायबिटीज आर, अब देखते हैं कि इंटरनेशनली एग्रीड जेस्टेशनल डायबिटीज में कैसे कहेंगे कि जेस्टेशनल डायबिटीज है, क्राइटेरिया देख लेते हैं। उसमें क्या होता है कि अगर आपका अगर मदर का फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज अगर 92 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या उससे ज़्यादा है तो, और 1 घंटे की बाद, खाना खाने के 1 घंटे के बाद की वैल्यू अगर 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आती है और खाना खाने के 2 घंटे की बाद की वैल्यू अगर 153 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आती है तो आप कहोगे कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ जो रेंज है वो अलग हो गई है। ठीक है, जो और जब OGTT करते हैं डायबिटीज़ को इस्टेब्लिश करने के लिए जब किया जाता है नॉन प्रेग्नेंट ह्यूमन बींग्स में, तो उसमें क्या वैल्यूज़ है, अगर फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा होगा, ठीक है, और अगर 2 आवर्स के बाद की जो वैल्यू है वो 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ज़्यादा होगी तो कहेंगे कि डायबिटीज़ है। लेकिन यहाँ पे प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है कि अगर फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल 92 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा है तो, और अगर 2 घंटे के बाद की वैल्यू अगर 153 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा है तो आप कहोगे कि ग्लूकोज इंटॉलरेंस है। देख रहे हो आप, ये डिफरेंस होता है यहाँ पे, जो एक जो रेंज है, एक नॉर्मल जो रेंज है वो चेंज हो गई है। ठीक है, नॉन प्रेग्नेंट और प्रेग्नेंट ह्यूमन बींग्स में दिस इज फॉर प्रेग्नेंट women and this is for non-pregnant other adults. तो इसमें क्या है कि इन केसेस ऑफ जेस्टेशनल डायबिटीज पेशेंट्स अगर एस्टैब्लिश हो जाती है कि जो लेडी है प्रेग्नेंट वुमेन उसको डायबिटीज है, ठीक है, जेस्टेशनल डायबिटीज है, देन पेशेंट इज आस्क्ड टू कंट्रोल ब्लड ग्लूकोज लेवल्स वाया कैलोरी रिस्ट्रिक्शन। पहले तो पेशेंट को कहा जाता है कि आप कैलोरी रिस्ट्रिक्शन से अपने ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को कंट्रोल में कीजिए। लेकिन अगर पेशेंट नहीं कर पाती है ऐसा तो पेशेंट को फिर इंसुलिन के शॉट्स लेने के लिए कहा जाता है। ठीक है, तो उसमें कहा जाता है कि इंसुलिन शॉट्स लो, इससे आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो मेंटेन रहने चाहिए। ठीक है, तो लेकिन इसमें एक बात ये भी है कि जिन लेडीज़ को जेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है, ठीक है, और दे आर एट हायर रिस्क ऑफ डेवलपिंग टाइप 2 डायबिटीज़ लेटर इन लाइफ, उनको मतलब बहुत हाई चांसेस रहते हैं कि उनको जीवन में आगे चल के टाइप 2 डायबिटीज़ डेवलप होगा ही होगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना जेस्टेशनल डायबिटीज़ में जब ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो ये रहती है, लेकिन जैसे ही डिलीवरी होती है एकदम डिलीवरी के बाद सब कुछ एकदम नॉर्मल हो जाता है, बैक टू नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, उसमें ग्रोथ लेवल्स एकदम नॉर्मल हो जाते हैं, बिल्कुल प्री प्रेगनेंसी स्टेट वाले हो जाते हैं। लेकिन जिन लेडीज़ को जेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है आगे चल के उनको टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकता है, इसके बहुत हाई चांसेस हैं। मेरे डॉक्टर ने तो मुझे कह दिया था कि आपको होगा ही होगा टाइप 2 डायबिटीज़, 100% होगा। खैर हो सकती हैं चीज़ें, लेकिन आप अपने एफर्ट से जो प्रोग्रेशन है उसको आप स्लो डाउन कर सकते हो।
अब देखते हैं कि वाई जेस्टेशनल डायबिटीज हैपन इन सम वुमेन। कुछ लोगों में ये हो कैसे जाता है जेस्टेशनल डायबिटीज। तो इसमें क्या है कि इनिशियली इन प्रेगनेंसी इंसुलिन सेंसिटिविटी ऑफ द रिसेप्टर्स ऑन सेल्स इंक्रीजेस to increase uptake of glucose and increase fat stores to prepare body for energy demands in later pregnancy। इसमें क्या होता है कि जैसे जब प्रेगनेंसी की शुरुआत होती है उस दौरान जो सेल्स के ऊपर जो इंसुलिन के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं उनकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। ठीक है, उनकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज जो है वो सेल्स के अंदर जाए। और जब सेल्स जब इंसुलिन के इन्फ्लुएंस में जब ग्लूकोज सेल्स के अंदर जाते हैं तो क्या होता है, ग्लूकोज जो है वो बर्न तो होते हैं एनर्जी के लिए, और साथ ही साथ खूब सारे फैटी एसिड्स बनते हैं। ठीक है, जो ग्लूकोज सेल्स के अंदर जाता है दैट इज कन्वर्टेड इनटू फैट्स में कन्वर्ट होते हैं। दैट वो जो फैट्स दे आर स्टोर्ड इन द बॉडी। और ये इसलिए होता है ताकि लेटर ऑन प्रेगनेंसी में लेटर ऑन जो फैट्स हैं वो यूज़ हो सकें, ठीक है, उनको यूज़ किया जा सके। जैसे जैसे प्रेगनेंसी प्रोग्रेस करती है, ठीक है, एज प्रेगनेंसी प्रोग्रेसेस माइल्ड इंसुलिन रेजिस्टेंस इज डेवलप्ड बाय प्लेसेंटल एंड सम अदर हार्मोन्स। ठीक है, जैसे जैसे प्रेगनेंसी प्रोग्रेस होती है यानी कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में, ठीक है, तो उसमें माइल्ड इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होती है। सेल जो हैं वो थोड़े से रेजिस्टेंट हो जाते हैं टुवर्ड्स इंसुलिन। ठीक है, और ये कैसे रेजिस्टेंट होते हैं, बाय सम प्लेसेंटल हार्मोन्स। प्लेसेंटा से हार्मोन्स रिलीज होते हैं और कुछ और हार्मोन्स होते हैं, वो उनके इफेक्ट की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होती है माइल्ड। ठीक है, और वो इसलिए होता है क्योंकि भाई फीटस भी अंदर है, पल रहा है, एम्ब्रियो भी अंदर है, तो उसको भी तो ग्लूकोज चाहिए ना, ताकि जो मदर ग्लूकोज ले रही है खाने में वो ग्लूकोज जो है जितना रिक्वायर्ड है उतना बच्चे को ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए मिले। ठीक है, तो जितना ग्लूकोज मदर ले रही है, ठीक है, उसका एक जितना रिक्वायर्ड है उतना अमाउंट फीटस के पास जाना चाहिए, तो वो प्लेसेंटा को क्रॉस करके फीटस के पास चला जाता है। ठीक है, ज़्यादा जो ग्लूकोज मदर ले रही है, तो वो इसलिए थोड़ी इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होती है ताकि मदर के सेल्स में कम जाए और ज़्यादा जो जितना रिक्वायर्ड ग्लूकोज है वो फीटस के डेवलपमेंट के लिए चला जाए। ठीक है, वो उसके लिए फिर ये माइल्ड रेजिस्टेंस डेवलप होती है। अच्छा, जब माइल्ड रेजिस्टेंस डेवलप होती है तो एज अ रिजल्ट ब्लड ग्लूकोज लेवल्स आर स्लाइटली इंक्रीज्ड। ठीक है, एंड प्रेगनेंसी अलॉन्ग विद फैटी एसिड ऑक्सीडेशन। तो उसमें क्या होता है कि फैटी एसिड ऑक्सीडेशन मदर में बढ़ जाती है उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे ग्लूकोज जो है वो, क्योंकि ग्लूकोज रेजिस्टेंस थोड़ी सी डेवलप हुई होती है बॉडी में, तो ग्लूकोज मदर के बॉडी सेल्स में ना जा करके फीटस के पास जा रहा होता है ताकि उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सके। तो मदर कुछ टाइम के लिए फिर फैटी एसिड ऑक्सीडेशन से अपना काम चलाती है, मतलब मदर के अंदर जो सेल्स हैं वो उसमें फैटी एसिड ऑक्सीडेशन से एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, this glucose homeostasis is maintained by hypertrophy and hyperplasia of pancreatic beta cells as well as increased glucose stimulated insulin secretion। अब इसमें क्या होता है कि जब मदर के अंदर माइल्ड इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है तो उस टाइम पे जो ग्लूकोज होम्योस्टेसिस होता है, क्योंकि ब्लड में ग्लूकोज बढ़ जाते हैं, ठीक है, उसको मेंटेन करने के लिए फिर पेनक्रियाज में फिर हाइपरट्रॉफी होती है और हाइपरप्लासिया होता है। जो पेनक्रिया में जो बीटा सेल्स होते हैं ना, जो इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं, उनका नंबर बढ़ जाता है और उनका थोड़ा साइज भी बढ़ जाता है। ठीक है, देयर इज हाइपरट्रॉफी एंड देयर इज हाइपरप्लासिया ऑफ बीटा पेनक्रियाटिक बीटा सेल्स। ठीक है, इनका नंबर थोड़ा सा बढ़ जाता है, इनमें थोड़ी सी इनका साइज थोड़ा सा बढ़ जाता है ताकि थोड़ा सा ये इंसुलिन ज़्यादा सिक्रीट करें। ठीक है, तो ये होता है, लेकिन कई लेडीज़ में ऐसा नहीं हो पाता है। जिन लेडीज़ में ऐसा नहीं हो पाता है उनमें ग्लूकोज इंटॉलरेंस डेवलप हो जाती है। ठीक है, क्योंकि ऐसी लेडीज़ फिर उनमें जो ग्लूकोज होम्योस्टेसिस है वो मेंटेन नहीं हो पाता है। नाउ लेट अस कम ओवर टू ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है फूड्स का होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स इंडिकेट करता है हाउ रैपिडली ब्लड ग्लूकोज लेवल्स राइज आफ्टर कंज्यूमिंग अ फूड आइटम। कोई भी फूड है उसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो इंडिकेट करता है कि उस खाने को कंज्यूम करने के बाद कितनी देर के बाद आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल्स बढ़ेंगे। ठीक है, तो वी हैव फूड्स हैविंग लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ऐसे फूड है जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है,
ऐसे फूड आइटम्स जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होता है, ऐसे फूड आइटम्स को जब आप कंज्यूम करते हो तो आपके जो ब्लड ग्लूकोज लेवल्स हैं वो इंस्टेंटली बढ़ते हैं, जल्दी बढ़ जाते हैं। यहाँ आपने खाया, थोड़ी देर में आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल्स बढ़ जाते हैं। ऐसे फूड आइटम्स जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है, इनको जब आप कंज्यूम करते हो तो ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो तुरंत नहीं बढ़ते। ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल्स हैं वो धीरे 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 बढ़ते हैं। ठीक है, तो जो ग्लूकोज है, अगर आप ग्लूकोज को ही अगर कंज्यूम करते हो तो ग्लूकोज को कंज्यूम करते हो या माल्टोज को कंज्यूम करते हो तो इनका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो काफी हाई होता है, दैट इज द हाईएस्ट मोस्ट। ठीक है, 142 होता है। और जो व्हाइट ब्रेड है, जो सफेद जो मैदे की जो ब्रेड होती है, उसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो 100 होता है। ठीक है, तो लेट मी शो यू टेबल जहाँ पे अलग अलग फूड आइटम्स के ग्लाइसेमिक इंडेक्सेस दिए हुए हैं। तो अब जैसे ये टेबल है, तो इसमें दिया है कि जो होल व्हीट है इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो 100 है। ठीक है, तो मैं कुछ कुछ आइटम्स का शेयर करूंगी। जैसे राइस, हम लोग राइस बहुत खाते हैं, हाँ इंडिया में राइस काफी खाए जाते हैं। तो जो व्हाइट राइस है, पॉलिश्ड राइस जो होता है, व्हाइट राइस, इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, अगर इनको उबाल के चावल बनाया जाए तो उबले चावल जो होते हैं व्हाइट, उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है 81, विच इज हाई होता है ये। ठीक है, और अगर आप जैसे कॉर्नफ्लेक्स को देखो, जो सीरियल्स में हम लोग कॉर्नफ्लेक्स खाते हैं सुबह दूध में डाल के, इनका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है काफी हाई है, दैट इज 121। ठीक है, वहीं पे अगर आप पोटैटोज को देखो तो पोटैटोज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत हाई होता है, 120। वहीं अगर इनको उबाल दिया जाए पोटैटोज को तो इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स थोड़ा सा घट जाता है, 80। ठीक है, वहीं पे आप देखो योगर्ट का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 52 है, विच इज लो। स्किम मिल्क का 46 है। ठीक है, होल मिल्क का 44 है। शुगर्स का मैंने बताया, ग्लूकोज का तो हाईएस्ट मोस्ट है। ठीक है, फ्रक्टोज का कम है, बिकॉज फ्रक्टोज तो फ्रक्टोज है ना, डिफरेंट फ्रॉम ग्लूकोज। रेजिन्स जो होती हैं, किशमिश का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 93 है, विच इज क्वाइट हाई। ठीक है, और फ्रूट्स में एप्पल को देखो तो एप्पल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफी कम होता है। तो जो शुगर के पेशेंट्स होते हैं वो एप्पल खाएं तो इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होती उनको। ठीक है, ऑरेंजेस का भी बहुत ज्यादा नहीं है, 59 इज नॉट दैट मच। मैं बताऊंगी आपको कि लो ग्लाइसेमिक फूड कौन से हैं और हाई ग्लाइसेमिक फूड कौन से हैं, अलग से एक टेबल है। अच्छा, दालों को अगर आप देखें तो दालों में भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स ठीक ठाक ही होता है। ठीक है, अगर आप देखें किडनी बीन्स, जो ये राजमा है, राजमा का ग्लाइसेमिक इंडेक्स है 74, विच इज क्वाइट हाई। ठीक है, वहीं पे जो फ्रोजन पीज होते हैं, ठीक है, हम लोग खाते हैं ना फ्रोजन पीज, उनका भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफी हाई है, 85। तो ये है अलग अलग फूड आइटम्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स। और अच्छा, नाउ लेट अस सी कि कितने को हम मानेंगे कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है और किसको कहेंगे कि हम ये हाई है। तो ये टेबल बताता है। ठीक है, तो इसमें है अगर ग्लाइसेमिक इंडेक्स अगर 55 या उससे नीचे है तो हम कहेंगे कि ये जो फूड आइटम है इट हैज अ लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ठीक है, इसमें हमारे ज्यादातर फ्रूट्स आ जाते हैं, वेजिटेबल्स आ जाती हैं, हमारे होल व्हीट ब्रेड्स आ जाते हैं, ब्राउन राइस आ जाता है, फिश आ जाती है, एग्स आ जाते हैं। ठीक है, और वहीं पे मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स में आते हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 56 से लेकर 69 के बीच में होता है। तो इसमें होल व्हीट प्रोडक्ट्स आ गए, ब्राउन ब्रेड वगैरह, बासमती राइस आ गए, फिर स्वीट पोटैटो, टेबल शुगर, व्हाइट राइस भी इसी में आते हैं। ठीक है, सो दीज हैव मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स में जिन फूड आइटम्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70 से ज्यादा होता है, ये सारे हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड आइटम्स हैं। तो इसमें हमारी कॉर्नफ्लेक्स हैं, राइस क्रिस्पीज हैं, बेक पोटैटोज हैं, व्हाइट ब्रेड है, मैदे वाली ब्रेड जो होती है, और सीधा सीधा ग्लूकोज है। ठीक है, ये तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं, एंड देयर वुड बी मेनी मोर एग्जाम्पल्स। तो व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू नो अबाउट ग्लाइसेमिक इंडेक्स? जो जिन लोगों को डायबिटीज होती है या जिन लोगों को ग्लूकोज इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम है, जिनकी ग्लूकोज टॉलरेंस इम्पेयर्ड है, उन लोगों के लिए जरूरी है कि वो इस तरह का खाना खाएं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो लो हो। ठीक है, ऐसा खाना ना खाएं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई हो, ताकि उनके जो ब्लड ग्लूकोज लेवल्स है वो एकदम इंक्रीज ना हो। ठीक है, तो अब ये खुद मेरा ऑब्जर्वेशन है कि जब आप खाना खाते हैं तो जो सब्जी रोटी का कॉम्बिनेशन है, या सबसे बढ़िया होता है सब्जी और चावल का कॉम्बिनेशन।
जब ये आप कंज्यूम करते हो ना, चावल सब्जी या रोटी सब्जी, तो आप ब्लड ग्लूकोज लेवल्स बहुत रैपिडली राइज नहीं करते ब्लड में, ठीक है। लेकिन अगर आप चावल दाल खाते हो या दाल रोटी खाते हो, ठीक है, दाल और रोटी का कॉम्बिनेशन, दाल या चावल का कॉम्बिनेशन, जब ये आप कंज्यूम करते हो तो ब्लड शुगर लेवल्स बहुत तेजी से शूट अप करते हैं। ये मेरा खुद का ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। और वो शायद इसलिए है क्योंकि देखो चावल में भी चावल एक मीडियम, चावल का जो बॉइल्ड राइस का जो इंडेक्स है दैट इज मीडियम, ठीक है। इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो मीडियम होता है। लेकिन साथ में दाल आ जाती है, जब दालों में बहुत प्रोटीन, बहुत कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। हमें लगता है ना कि जो दालें होती हैं दे आर रिच इन प्रोटीन्स, ऑफ कोर्स दे आर रिच इन प्रोटीन्स, पर उनका जो कार्बोहाइड्रेट कंटेंट होता है दैट इज ऑल्सो वेरी हाई। जितनी भी दालें होती हैं, ऑलमोस्ट सभी दालों में कार्बोहाइड्रेट्स 60 to 65% मौजूद होते हैं, ठीक है। प्रोटीन्स तो 20%, 25%, 30, मैक्सिमम 36% होते हैं, और बाकी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो अगर आप दाल कंज्यूम करते हो अलॉन्ग विद चावल या अलॉन्ग विद रोटी, तो भी इनका ग्लाइसेमिक, तो भी जो ब्लड शुगर लेवल्स होते हैं वो रैपिडली राइज करते हैं। ओके, सो दिस वाज अबाउट ग्लाइसेमिक इंडेक्स। आई होप ये लेक्चर में जो भी मैंने पॉइंट डिस्कस किए हैं, जो भी मैटर डिस्कस किया, वो सारा आपको क्लियर हुआ है। और अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। एंड गुड बाय एंड बाय बाय।